के ट्रेड्स आपके ब्रांड के अंदर एनहांस हो जाते हैं. दैट इज द रीजन दे वेंचर्ड विद खतीजा शाह. देन यू कांट बी लाइक अ प्रीमियम ब्रांड इफ यू आर नॉट इनोवेटिंग, इफ यू आर नॉट चेंजिंग, इफ यू आर नॉट लर्निंग. अगर आपका कंज्यूमर इस बारे में अवेयर ही नहीं है तो शायद आप सारा जिंदगी सर्वाइव कर जाएं. बिकॉज यही आपकी ब्रांड स्टोरी बनाता है. और अगर आपकी ब्रांड वॉइस खराब होगी तो फिर आपकी ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी कि ये क्या बात करें. सो मार्केट प्लेसेस से आपके 52% रेवेन्यूज जनरेट होते हैं बिकॉज इट हैज़. जो आज की क्लास है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज कल हमने प्लेटफॉर्म्स के बारे में सीखा था, कल हमने स्ट्रैटेजीज के बारे में सीखा था. आज हम स्टोरी के बारे में सीखेंगे कि स्टोरी होती है, क्यों बनती है और कैसे बनती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर ब्रांड की एक स्टोरी हो. सो या शैल वी बिगिन. ओके, कैन एनीबडी टेल मी कि ब्रांड स्टोरी क्या होती है बिफोर आई एक्चुअली शेयर व्हाट इज अ ब्रांड स्टोरी. जैसे KFC के जो उन्होंने अपना कि भाई वो बनाया चिकन और उन्होंने आगे पहले अतराफ पे देना शुरू किया और फिर आगे वो बढ़ना शुरू हुए. तो इस तरह वाज दैट अ ब्रांड स्टोरी? मेरे ख्याल में प्रोडक्ट बनने के बाद ब्रांड तक पहुंचने का दरमियान में जो उनका जो सफर है, क्यों आपने ब्रांड को शुरू किया है, क्यों चाह रहे हैं ओके ओके, कुछ हद तक. Why that brand come to ओके, चलिए एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं. A brand story is a cohesive narrative that encompasses the fact and feelings that are created by your brand or business, if you are prefer. Unlike traditional advertising, which is about showing and telling about your brand, a story must inspire an emotional reaction. So all those adverts, all those branding which you see across mediums, which you see here and there, it's telling you something. So हम कुछ brand stories देख सकते हैं पहले. Yes. Castaway was an example of it. Sorry? FedEx की जो Castaway मूवी थी. जी जी. That was a bit like a brand story के. बिल्कुल ऐसे ही है. स्टीव जॉब की मूवी थी, कल मैंने आपको द फाउंडर बताया था, और मैकडॉनल्ड्स के ऊपर. Then there are a couple of other movies as well which is based on marketing and all. So मैंने आपको 2 examples भी दी थी कि हमने Reebok और Nike को बहुत अच्छे तरीके से study करना है because they are the best brand examples throughout global landscape. यहाँ पर we are going to watch 111 ads and then we are going to look at कि वो brand कैसे बना और ये एडवर्ट्स एक्चुअली ब्रांड की क्या स्टोरी दिखा रहे हैं. कैन वी हैव लाइट स्विच एंड कैन वी प्ले द फर्स्ट वन? Is this the land history promised? Here, within these lines. On this concrete court. This patch of turf. Here, you're defined by your actions. Not your looks or beliefs. Equality should have no boundaries. The lines we find here should run past these lines. Opportunity should not discriminate. The ball should bounce the same for everyone. Worth should outshine color. We can be equals here. We can be equals everywhere. एंड सिर्फ नाइकी को ही क्यों पड़ी है कि वो रेस के बारे में बात करे, वो ट्रेड्स के बारे में बात करे, ट्रिक्स के बारे में बात करे. अब हम नेक्स्ट देखें. There are no grand celebrations here. No speeches. No bright lights. But there are great values. Somehow we've come to believe that greatness is reserved for the chosen few. But to suit us now,
is trying to find it. This is another ad telling about find your greatness. So there are two adverts which I have shown you. One was talking about equality and the other is talking about find your greatness. कल हमने नाइकी की वैल्यू प्रपोजिशन पढ़ी थी और हमने समझा था कि ब्रांड कहाँ स्टैंड करता है और किस चीज़ के साथ लिंक करना चाहता है. यस, वेरी नाइस. सॉरी, आपका नाम? सॉरी, रोशन. रोशन, वेरी नाइस. आपको सारी चीज़ें याद हैं. दैट्स सो गुड टू सी. सो डज दिस ब्रांड टेल्स यू अ स्टोरी through their communication? They are addressing systemic racism. Sorry? They are addressing issues within the sports community of systemic racism. They are addressing different genders. They are showing different class. They say that we are no different. We are for everyone. That is what they are showcasing through their adverts. And also they are trying to establish Nike in the heart of the consumer through their communication, right? Let's watch another ad. Tom's shoes का तो आप सबने सुना होगा. जी, ईलो पे मिल रहा है. One very likely said, but ईलो पे मिलने के अलावा भी और कुछ है टॉम्स के साथ. टॉम्स is one of the biggest brand and they're one of the camping with the name of one for one. It got traction कि 50,000 पेयर बिके थे इनके जब इन्होंने ये कैंपिंग लॉन्च की थी फॉर द फर्स्ट मंथ. और ये कैंपिंग क्या थी थोड़ा सा देख लें. Tom One for One is one of their main camping ideology when they think that brand should have a CSR element attached, and education is one of the key pointers which globally addressed. बहुत ज़्यादा ग्लोबली एड्रेस होता है. पाकिस्तान में तो इतना हम एजुकेशन को वैल्यू ही नहीं देते. हमारी सिर्फ 22 मिलियन आबादी जो है वो एजुकेटेड है और उसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो उनका एजुकेशन से शायद कोई ताल्लुक़ नहीं है. सो व्हेन दे लॉन्च दिस कैंपिंग, इस कैंपिंग का मकसद ये था कि अगर आप एक जूता खरीदेंगे तो दूसरा जूता किसी को डोनेट होगा. दिस इज़ वन ऑफ द डोनेशन ड्राइव विच इज़ बिन इसके ऊपर काफ़ी केसेस स्टडीज़ हुई हैं और ये डोनेशन ड्राइव मेरे ख्याल से अब तक चल रही है. आई डोंट नो इफ़ द ब्रांड इज़ कीपिंग अप दिस कैंपिंग टिल डेट or not, but yeah, this was finished मेरे ख्याल से last year. थोड़ा सा इमोशनल ऐड है.
Sorry. P&G, proud sponsor of Moms. P&G is an FMCG organization with various product line talking about different things, different elements, different topics. Different brands have different voice, and this ad was a total emotional connection for recalling and reassuring that माँ सब कुछ होती है जो वाकई में होती है लेकिन yes this was one of their campaigns. Okay, ये मैंने आप लोगों को कल कहा था देखने को, आई एम श्योर किसी ने नहीं देखा, तो लेट्स वॉच इट टुगेदर. It's not about taking the road less traveled. It's not about impressing anyone. Persistence. It's not a formula. It's not talent. It's about overcoming your failure. Failure is not an option. It's a requirement. Which means nothing without it. Push yourself until you fail. Do it again and another time. You overcome it. That voice that tells you to stop gets different. Tired. Silent. That the moment you realize you are doing twice what you thought you could do. We all have a way to get there. But you can't follow. You have to find it. Such a great ad, and it's a very explicit and a very good example of social media trolls. पाकिस्तान में जब सारे एथलीट्स अभी लास्ट ईयर खुद से मेहनत करके बाहर गए ओलंपिक्स के अंदर, सो इंस्टेड ऑफ अस हु शुड बी बकिंग देम अप, वी ट्राई टू पुल देम डाउन, वी स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग. जबकि खेल में जीत नहीं होती, खेल खेल होता है, जीतने के लिए नहीं खेला जाता. So that is one of their powerful campaign that empower people. This is what a brand is telling us to do. I think इसके बाद हमारा आखिरी yes, and this is one of my favorite brands. I think सारी औरतों का है. Dear planet, we are committed to making fashion more sustainable. That's why 79% of our garments already have sustainable properties. By 2022, it will be 100%. Fiber by fiber, step by step, from our sourcing to our processes, we are committed to making a material difference from here to you. क्या ब्रांड स्टोरीज आपने देखी? प्लीज. शूज जो बड़ी अच्छी कैंपेन पे वुमन फॉर क्या आपने एक लेना क्या इन सारे ब्रांड्स को, सॉरी मेरा आप सबसे सवाल है, इन सारे ब्रांड्स को ज़रूरी है अपनी कम्युनिकेशन में इन स्टोरीज को बताना? वाई? मैंने कल आप लोगों से एक चीज़ कही थी, ब्रांड आर्केटाइप्स, वो एक इमोशनल अटैचमेंट जो है वो इन स्टोरीज के साथ बनती है. और वो इमोशनल अटैचमेंट क्या करती है? याद रहता है वो ब्रांड लेना, उसके साथ कनेक्ट रहना. दैट्स वेरी नाइस, वेरी कूल. कल तक हम सिर्फ पैसों की बात कर रहे थे, आज हम एफिलिएशंस की बात कर रहे हैं. दैट्स वेरी कूल. ओके जनाब, ब्रांड आर्केटाइप इज
Brand archetypes need to connect with their audience. Like when brands need to connect with their audience in a deep and meaningful way in order to build authenticity, loyalty, and trust. Brand archetypes provide a framework based on human psychology to help your company build a worthwhile and valuable relationship. And those valuable relationship can be one of the ground in order to build communication. Does anybody know how many brand archetypes are there? 12 Oh nice. इसका मतलब आप पढ़ के आए? लिख के भी लाए। क्या बात है, जबरदस्त। ओके जनाब। अच्छा, हाउ टू डिटरमिन योर ब्रांड आर्केटाइप, क्यों है भाई ज़रूरी ब्रांड आर्केटाइप बनाना? द रीज़न मैंने आप लोगों को आते ही इतने सारे एड्स दिखाए क्योंकि मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती थी कि ब्रांड स्टोरी क्यों ज़रूरी होती है। और जब तक हमें ये ही नहीं पता होगा कि ब्रांड स्टोरी ज़रूरी है तो हम इन आर्केटाइप्स को नहीं समझ सकते, और जब अगर हम आर्केटाइप्स नहीं समझ सकते तो हम ब्रांड स्टोरी बना भी नहीं सकते। It's like a two-way communication. So before defining a brand, you should use an archetype. It's very must. Why? Because it will tell you who is your target audience, what you need to, like your potential. It will help you in understanding your potential customers. What is the perception of the company? What are the product and services that you are providing? And also, it will help you in letting people know about what they feel about your company. ठीक है? Brand perceptions are very important term, जिसे हम कहते हैं brand image. Brand image बनाना एक proper process है. It cannot be created overnight, over time. It takes decades. At sometimes आप बना ही नहीं पाते brand image को. You try harder with the same message. The message has to be very much well connected with your target audience. इसीलिए कोई भी काम करने से पहले, मतलब लाइक वो जिस तरह बड़े बूढ़े कहते थे ना कि जब आप काम करते हैं तो उससे पहले आप समझेंगे आप काम कर क्यों रहे हैं। इसी तरह हम भी कहते हैं जब आप ब्रांड बना रहे हैं तो पहले आप सोच लें कि आप कर क्यों रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। द पर्पस डिफाइन करना, उसकी ऑडियंस डिफाइन करना, इट इज़ वन ऑफ द की पैरामीटर्स विच यू शुड know before making a brand. Let's move on to brand archetypes. Okay, brand archetype, these are 12 brand archetypes. Sage, innocent, creator, ruler, caregiver, everyman, gesturer, lover, hero, magician. And there are different brands who fall in all these archetypes. अच्छा, अब ये ब्रांड आर्केटाइप्स करती क्या हैं, और इसकी अगर मैं लेमैन डेफिनेशन में बताऊं तो इट एक्चुअली गिव्स ब्रांड को आवाज़ देती हैं, लाइक इट गिव्स द वॉइस टू द ब्रांड. व्हाट दे डज इज दैट दे मेक एन आउटलाइन जिसके ऊपर आप अपनी पूरी कम्युनिकेशन ब्रांड डिज़ाइन को बेस कर सकते हैं. इट विल टेल यू व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट शुड बी योर डिज़ायर ऑफ द ब्रांड, व्हाट यू लुक अप टू, why you should be doing it, and how you can improve and what you can give back. That also brand archetypes आपको बताती हैं. So basically अगर मैं creator की बात करूँ तो जैसे नाम है creator, it tells you how to innovate. अगर मैं innocent की बात करूँ तो वो safety. अच्छा, before move on to, sorry, ये इसका core है ब्रांड आर्केटाइप का. दिस इज द कोर. ये जो आर्केटाइप हैं 3, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर फोकस करती हैं, वाइल दीज 3 प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और व्हाटएवर ब्रांड यू आर मेकिंग. दिस कनेक्ट टू अदर्स एंड दिस विल लीव अ मार्क. So whenever you are designing a brand, you should think through of these archetype first. कि क्या आर्केटाइप होनी चाहिए, क्या मेरा ब्रांड होना चाहिए, उसकी क्या स्टैंडिंग होनी चाहिए मार्केट के अंदर. जी जी. मैंने ये आर्किटेक्ट आज बहुत डिटेल से पढ़ा. ओह दैट्स वेरी नाइस. तो ये आर्किटेक्ट्स जब डिफाइन हुए थे तो बेसिकली ह्यूमंस के लिए डिफाइन हुए थे. बिल्कुल ऐसे. ह्यूमंस की पर्सनालिटी को उन्होंने सेग्रीगेट किया. हाउ मेनी पर्सनालिटी ट्रेट्स आर देयर? यस, देयर आर 12. उन्होंने इसको डिफाइन किया था. देयर आर 12 ट्रेट्स. और जो ब्रांड आर्किटाइप्स हैं वो उन ट्रेट्स को अकम्प्लिश करने के लिए बने हैं. यस, वेरी कूल. जैसे इनोवेशन एक इंसान के अंदर उसकी पर्सनालिटी होती है तो ही इज लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स. यस, तो उसको कैटर एक्सप्लोरर लोग ट्रैवल करते हैं. दैट इज वन ऑफ द ट्रेट्स. करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देयर यू गो. सो बेसिकली आप ये समझेंगे आपका कंज्यूमर है. हां जी. और आपने इसके ऊपर अपने प्रोडक्ट को मैप करना है और अपने ब्रांड को मैप करना है. वेरी सिंपल. लेट्स मूव ऑन
ठीक है, अब यहाँ पर हम पूरा क्लियर बता रहे हैं कि ब्रांड आर्केटाइप्स क्या है और इसमें कौन कौन से ब्रांड फॉल करते हैं. माय फेवरेट ब्रांड आर्केटाइप इज इनोसेंट, क्रिएटर एंड हीरो. ये तीन मेरे ख्याल से शायद मुझसे भी रिफ्लेक्ट करती हैं. बट आई डू फॉल इन एक्सप्लोरर और केयर गिवर, बट क्रिएटर, इनोसेंट और हीरो, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट आर्केटाइप्स. अब लेट्स सी क्रिएटर, what does it do? They innovate, they are creative, they are imaginative, they are non-linear and they're out of the box. But rebellious नहीं है, लेकिन out of the box है. That is one of the trait of the personality as well. So इसमें कौन कौन से brands fall करते हैं? Apple, Lego, Adobe and GoPro. GoPro, when they made this GoPro की जो products आई, so at one day their marketing manager says that हमारी sales नहीं हो रही because people are not linking with the product. Then they brainstormed and they started making videos, and what they did is that they started giving free cameras to 4-5 traveloguers और उनसे कहा कि जाओ जाके अपनी videos बनाओ wherever you are traveling. So they started to link the product and the brand with your memories, that we help you capture your memories. That's how GoPro position themselves. Then Innocent, जैसे हमने कल काफ़ी इसके ऊपर बात की थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 75 ब्रांड्स हैं जो कि इनोसेंट की कैटेगरी पे मैप करते हैं. मेरे ख्याल से इनोसेंट सबसे अच्छी कैटेगरी है, आप कुछ भी मैप कर सकते हैं उसके ऊपर. तो डोव, मैकडॉनल्ड्स, कोको कोला, हर्ष पपीज, वॉक्सवैगन, ये सारे इनोसेंट कैटेगरी पे मैप होते हैं. जी 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 बिल्कुल ऐसे ही, बिकॉज इट्स सेफ्टी ना. They don't talk negative. Their innocents are positive. अगर आप इंसान में भी देखें, जो इंसान होता है, जो इनोसेंट होता है, जो नाइव होता है, आप उसको कोई नेगेटिव बात भी बताएं उसको नहीं समझ में आती, वो उसको भी पॉजिटिव ही लेता है. वो कहते हैं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव तो कुछ होता ही नहीं है, सब पॉजिटिव होता है. सो दैट इज वन ऑफ द ट्रेट ऑफ दिस ब्रांड आर्केटाइप, जहाँ पर प्योरिटी, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, सेंस ऑफ वंडर कम्स विद इन. देन अगर हम हीरो की बात करें तो हीरो इज मास्टरी. व्हेन यू आर मास्टर ऑफ समथिंग, व्हेन यू नो हाउ टू कॉन्कर द वर्ल्ड, दैट इज वन ऑफ द ब्रांड आर्केटाइप विच से सेल्फ सेक्रीफाइस, करेज, रिडेम्पशन, स्ट्रेंथ. और इसके अंदर नाइकी, BMW, फेडेक्स, अडिडास, द रॉयल मरीन्स, और मेरे ख्याल से रीबॉक नहीं, रीबॉक क्रिएटर में से है, रीबॉक इज नॉट हीरो. सो ये कौन डिफाइन करते हैं मिसाल के तौर पे कि इस जगह फॉल करे? जैसे मुझे लगा कि एप्पल जो है वो हीरो में आना चाहिए. एक मैं बात कर रही हूँ, एप्पल हीरो में क्यों आना चाहिए? क्योंकि वो टॉप पे है सारी चीजें. नहीं, कैसे? वो दे आर द क्रिएटर, उन्होंने बनाया है ना. तो देखें, मैम डिसाइड कौन करता है कि ये इस कैटेगरी में फॉल? आप ब्रांड ओनर हैं, आप डिसाइड करेंगे, आपकी प्रोडक्ट डिसाइड करेगी, आपकी स्ट्रैटेजी डिसाइड करेगी जो कल हमने बनाई थी, आपका मार्केटिंग प्लान डिसाइड करेगा. ये तो मेरी ब्रांड का होगा. इन ब्रांड को तो जो लोग इन ब्रांड पे काम कर रहे हैं वो लोग डिसाइड कर रहे हैं ना. एंड देन दे आर मैपिंग दोज ब्रांड ऑन दोज डायरेक्शन, और फिर उसी के हिसाब से उसकी कम्युनिकेशन बनती है. खैर, ब्रांड आर्केटाइप इस तरह नहीं डिफाइन होती कि आज मैंने कहा कि ये हो जाए. देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस टू इट. जिस तरह पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, इसी तरीके से ब्रांड टेस्टिंग टूल्स भी होते हैं. ये जितने भी ग्लोबल ब्रांड्स हैं, दे यूज दोज टूल्स, एंड देन आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च यू गेट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा. और सिर्फ ये नहीं होता, इसके अलावा आउटसोर्स रिसर्चेस भी काफ़ी होती हैं. सो डिफरेंट ब्रांड्स को आप डिफरेंट चीज़ें दे रहे होते हैं, एंड देन दे विल गेट टू नो आफ्टर लाइक सर्टेन क्राइटेरियाज. और जब आपकी BHTs आती हैं, जो ब्रांड हेल्थ ट्रैकिंग होता है या फिर इस तरह का, तो उसमें आपको पता चलता है कि अच्छा ये आपकी ऑडियंस है, ये आपके बारे में सोचती है, ये आपको इस तरह इंस्पायर करती है, ये आपको इस तरह देखना चाहती है. तो फिर आप डिसाइड करते हैं ओके मे बी वी फॉल इन दैट. सो दैट्स हाउ इट्स डन. हम एवरीमैन की बात करेंगे. एवरीमैन इज समथिंग विच यू फील बिलोंगिंग. अगर अब मैं लिवाइस की बात करूं तो लिवाइस कहता है कि मैं वो जीन्स हूँ जो तुम्हारी क्लॉजेट में सबसे पुरानी पड़ी हुई है. ऐसे ही. एंड लिवाइस साथ साथ ये भी कहता है कि आई एम द मोस्ट गोल्ड what you have. Why? Because they have the brand loyalty,
Plus, their product is credible, durable, and what they can do, nobody other can. You know. अच्छा जनाब, और कौन सी ब्रांड आर्केटाइप है जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है? Outlaw, rebellious. They're the leaders. They don't listen to anybody. I think जो कोक का नया ब्रांड है, Roar, वो भी यहीं आएगा. उसको भी कोई नहीं पूछता. वो किसी की नहीं सुनता तो उसको भी कोई नहीं पूछता. या पाकिस्तान की बात कर रहे हैं. अगर आप इंटरनेशनली देखें तो आई एम श्योर कि उसकी मार्केट बन चुकी होगी. पाकिस्तान इज वे बिहाइंड इन लॉट ऑफ थिंग्स. एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो रिस्क टेकिंग, प्रोग्रेसिव, ब्रेवरी, लिबरेशन इज आउटलॉ. अब द बेस्ट आर्केटाइप इज मैजिशियन. It gives you empowerment. It gives you power to create something magical, something intuitive, something which you can connect with, something which is charismatic, cleverly defined, and gives you a piece of information. And Disney, Dyson, Polaroid, and all those cosmetic brands. But in magicians, जी. mostly it's fake or illusions or something. आपको cosmetic illusion लगती है? Cosmetic is illusion. हाँ, वैसे कहते हैं कि इट्स अ विच क्राफ्ट. वेस्ट में दे से कि मेकअप इज अ विच क्राफ्ट. You don't recognize in the morning. नहीं, थैंक्स टू कोविड एंड अदर थिंग्स, अब तो क्या कहते हैं, यू नो, लाइक अपने स्किन टेक्सचर के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा बात करने लगे हैं. सो द मोर नेचुरल यू आर, द मोर ब्यूटिफुल you think, and that is why all these brands are present. So अगर हम gesture की बात करें या caregiver की बात करें, so अगर आप देखें इन दोनों की थोड़ी बहुत हार्मोनल ट्रेट्स हैं. जिस तरह caregiver is providing services, compassion, patience and empathy, while gesture is enjoyment, humor, it has originality and awareness. So ओल्ड स्पाइस की बड़े अच्छे एड्स हुआ करते थे, एंड M&M के भी बहुत अच्छे एड्स होते हैं. सो या, I think we are very good with this. How about we do an exercise and we map all our local brands on these archetypes. आप लोग बताएंगे, मैं सिर्फ करूंगी. सही? Are we good? ठीक है, let's try it. Creator, बताएं चलें. इधर कौन है इनोसेंट? Sage. Explorer. Let's see what is your understanding. And ruler, Caregiver. caregiver, Everyman. Jester. Lover. Hero. Magician. Outlaw. rebel भी कहते हैं outlaw को, by the way. There are two names. Yeah. सही है. ठीक है? Sorry. Pardon my drawing skills. I'm not very pro on making drawings at boats. जी जनाब. हाँ जी. कैसे? कैसे? वजह के साथ बताएं ना, बस ऐसे थोड़ी ना. It really appeals when it comes to the kids and the way they. Are they using their brand phenomena as well? कि मैं innocent हूँ? Maybe. Then they would not be, because you are not sure about it. Okay, जी. CS Sports when it comes to sports and they make a creator. चले मैं करूँ? Yeah, sure.
मैं करूं? मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? आपके टीवी चैनल्स यहाँ आ जाएंगे, ठीक हो गया? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? कोक यहाँ आएगा, ठीक है? अच्छा, एक्सप्लोरर, पाकिस्तान में कौन सा एक्सप्लोरर का कोई ब्रांड है? रेड बुल तो इंटरनेशनल है ना, इट्स नॉट पाकिस्तान। तो है ना, हाँ, कोक भी इंटरनेशनल है, सॉरी, माजरत, गलती मैंने। ओ उफ, ये आएगा यहाँ पर। सेज में मैम ओ, मैं आपको बताऊं, मेरे अभी बिल्कुल दिमाग में है कि नो, एवरीमैन, एवरीमैन, आउटफिटर्स मैम लोकल है yes, it's owned by Loft Commercial, started by Kamran Khurshid. खाड़ी को आप इनोसेंट कह रही हैं तो हाँ, हैं? एयरलाइंस हो सकती हैं। खाड़ी कहता है ना मैं पाकिस्तान हूँ, खाड़ी कहता है अपनी मासूम होते हैं। अपनी क्या कहते हैं ब्रांड लैंग्वेज से, खाड़ी कहता है अपनी कम्युनिकेशन ड्राइव से, खाड़ी कहता है दैट आई एम डिफरेंट, बट खाड़ी कोई नेगेटिव बात नहीं करता, तो खाड़ी इनोसेंट है। ये जो केयर गिवर है आफान हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। TCF लिखे ना यार, क्या हो गया आपको? इतनी ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास। क्रिएटर में सिस्टम लिमिटेड, सिस्टम लिमिटेड इज नॉट अ ब्रांड, इट्स नॉट अ ब्रांड, वो दे आर सर्विसेज ना, तो वो रूलर में आएंगी या केयर गिवर में आएंगी, सर्विसेज हैं। ब्रांड्स के बारे में बात करें, मैम टीवी चैनल सेज में आ जाएंगे, Magician में आएंगे न्यूज़ ना? चैनल, न्यूज़ चैनल कासिम अली शाह, म्यूजिशियन, कासिम अली शाह क्रिएटर नहीं, इनोसेंट में आएगा सर। हीरो में आएगा मैम, हीरो में। कैसे? अगर हमें लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसी है जो हमें नहीं समझ में आ रही, मैम he's outlaw, he's outlaw. नहीं, इज नॉट लिबरेटिंग एनीथिंग। मैम जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस हैं ब्रांड है वो क्रिएटर बिल्कुल, जैसे डॉलिंस डॉलेंस, ओ यस, वो विजडम में उसमें आएगी, सेज में। क्यों? विजडम, अंडरस्टैंडिंग। आप बिल्कुल कासिम अली शाह पे अटक गई हैं, आप आगे बढ़े वहां से। ब्रांड हो गया ना। Let's move on and let's think about some bigger brands. हुदा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तानी ब्रांड है ना। No idea. हुदा ब्यूटी कार्टान is like international यार। रिवाज कर लेना रिवाज रिवाज सेज में आएगा, तो बताएंगे तो डिफिकल्टी आसान होगी ना। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो मुश्किल है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर मैं ये 4 ब्रांड्स के नाम लिख सकती हूँ दिमाग से सोच के, तो आप लोग तो माशाल्लाह यू नो लाइक। मैम अगर द टाइम्स और BBC सेज में आ रहा है तो हमारे न्यूज़ चैनल क्यों नहीं सेज में आ रहा चलें जी, ये लें न्यूज़ चैनल, ये लें सर जी। आपका नाम क्या था? है? जीशान। खुश? न्यूज़ चैनल में बता दो, बोल तो नहीं। कोई भी लिख दे, बोल जियो, बस न्यूज़ चैनल हमने लिख दिया जीशान की खातिर। फूड रेंज है चलें एक बोलें क्या? लम्स एक्सप्लोरर है, कैसे क्या किया उन्होंने ऐसा एक्सप्लोर करने में? रिसर्च उसकी अच्छी है। मेरे ख्याल से कि लीडरशिप है वो यूनिवर्सिटीज में। अच्छा, आउटलुक है जैसे फूड का है वैसे ही आउटलॉ में आएगा। यू वेरी राइट, द पीपल in the organization, out of the organization after passing out is rebellious. हाँ, there you talking ना। अब आप लोगों ने नाम लेना शुरू किया है, बताएं जनाब, नेशनल फूड बताएं कहाँ रखूं नेशनल फूड्स को? एवरीमैन गोरमे शान है इधर, नेशनल है शान है, शान है, खुशियाँ चख लो। सुपर है इधर, तरंग है इधर, सेवन फूड्स, ऑल्पर्स है इधर। देखा, मैंने कहा ना, कोई भी ब्रांड आप यहाँ मैप करना चाहें, यहाँ तो वैसे ही ठक 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 ब्रांड्स मैप होंगे। ये हमारा रूलर मैम रूरल में जो गुल अहमद है वो रूरल में आ सकते हैं? क्यों आएगा? क्या क्या कंट्रोल करता है, क्या किस चीज की एम्पावरमेंट दे रहा है?
कोई वैसा कोई होंडा नहीं वो तो लोकल मैं नहीं तो है ना। इंटरनेशनल है। होंडा इज इंटरनेशनल, यस ही इज राइट। केयर गिवर में मैम कौन है? कौन नेचुरल्स? Talk to even. केयर गिवर आई थिंक वो लवर में नहीं आएगा। इंटीमेसी जो है, फेथ, पैशन, सेंसुअलिटी, विटालिटी, ये देखे ना, विक्टोरिया सीक्रेट्स एंड समर शनैल सब इधर आ रहे हैं। सो यहाँ आएगा को नेचुरल। जे डॉट परफ्यूम भी आ जाएगा उसमें। हाँ, हीरो बताएं, अभी तक हमने कोई हीरो ब्रांड नहीं तलाशा, ना ही रूलर तलाशा। चलिए बताएं फिर क्या प्रोडक्ट लाइन लेके आ रहे हैं आप? आगे बढ़े हेयर सीरम से आप। अच्छा ये है रोलर। चलें, कहाँ है रूह अफ़ज़ा? कहाँ है करशी? किधर किधर मैप करूँ? इधर? एवरीडे भी कर सकते हैं। एवरी मैन सॉरी। नहीं, एवरी मैन हर किसी के घर में तो होती है। सही वो है। इंटरनेशनल ब्रांड है। उसकी बिलोंगिंग नहीं ना, Everyday. belonging नहीं रूह अफ़ज़ा। ऐसे रूल्स तो लोकल है। हाँ, यहाँ हो सकता है। गोरमे Gourmet is just a chain of Horeca stores. It's not a brand. Have you seen any advert of Gourmet? No. What they talk about? Nothing. What they stand for? Nothing. Quality zero. तो पाकिस्तान में मोस्टली ब्रांड या लोकल वो Cheesiest. इस पे नहीं लाइक फोकस नहीं करते इन चीजों पे, वो अपने आप को डिफाइन नहीं करते। खाने के जितने भी ब्रांड्स हैं ना, वो मेरे ख्याल से जेस्टर में या फिर मेजिशियन में आएंगे। Cheesiest is a good example of innocent. हाँ, इनोसेंट में तो मैंने आपको कहा ना, ट्रिलियन ब्रांड्स मैप हो जाएंगे। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इनोसेंट, लेट्स टॉक अबाउट अदर कैटेगरीज। हीरो बताएं, कम ऑन गाइस, इतना तो हो ही सकता है। रोलर और दोनों ये हीरो और रोलर दोनों। एंड्योर कहाँ है? एंड्योर कहाँ मैप करो? रूलर तो नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। मैम लोकल ब्रांड्स का कंट्रोल है पाकिस्तान में किसी का भी, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है बाटा। J dot is an example. पर बाटा भी ग्लोबल है, क्यों लिखा मैंने? सर्विस लोकल है, बाटा तो ये जो बेड एंड बाथ लोकल ब्रांड किसी को हीरो बने नहीं दिया ग्लोबल है भाई। ना रूरल। J dot का हर्ष पपी ग्लोबल है, इनोसेंट है, कल बताया था। नो नो, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। हीरो बताएं, हीरो रूलर बताएं, एक एक ब्रांड लिखें। जेस्टर में भी एक ब्रांड रहता है, इसमें भी एक ब्रांड रहता है। थिंक थ्रू गाइस। पीक फ्रेंड्स जो है वो इंडस्ट्री में आ सकते हैं। हाँ, आ सकता है। ये ड्यू लोकल है। रायो आता है, बट रायो भी इंटरनेशनल है भाई, कैंडल है। हिंदुस्तानी नहीं। सॉरी, हाँ, जमीन आ सकती है। बेड डाउन किस में आएंगे? देखिए, मुझे ये एक्सरसाइज कराने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आप सबके ब्रांड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही है। यू गाइज ओन समथिंग, यू गाइज आर वर्किंग फॉर समथिंग। अगर आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप कल जाकर उसमें वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? यू नो, लाइक मैंने कल भी आपको बताया था कि द पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज एवरीवेयर। यू हैव टू ग्रैब दैट इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसलेट इन व्हाट यू आर डूइंग एंड ट्रांसलेट इन अ बेटर वे। दिस शुड बी योर ट्रेट। सो ये क्या ट्रेट होगा? ये ट्रेट है Nizam Bank क्रिएटर का, ये है मैजिशियन का, इनोसेंट का, Mizan Bank मिजान बैंक। ruler Islamic banking का pioneer थे पाकिस्तान। नहीं, इस्लामिक बैंकिंग पहले भी थी सर। मुशारबा मुतारबा Exactly, it was, but पहले से था। brand itself, नो नो, दे जस्ट मार्केटेड इट। वो बताएं जिसने एक्चुअल शुरू किया था। मुझे लगता है बैंक अल हबीब, मुझे लगता है। स्टेट लाइफ यार, ओहो, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें। अब इन्होंने चेंज कर दिया, खुदा मेरी धरती कर दिया। और बताएं, मोल्टीफोम कहाँ है?
नहीं, ऐसा क्या हीरो वाला काम किया मोटीफोम ने, सिवाय एक कैंपेन के? एवरीमैन में आ सकता है। बताइए। इंटरव्यू भी इसी तरह से लोकल है, चले हीरो रहता है, जेस्टर रहता है, जो रह गए हैं उसके बारे में बताएं ना। पीसीओ डला सकता है पीसीआर मॉडल नहीं, केयर गिवर में आएंगे, सर्विसेज हैं वो, यहाँ आ जाएंगी होटल चेन्स, हॉरिकाज होटल चेन्स, इन सब के एक ही पर्पस होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना। वो केयर गिवर में होंगी, या फिर बहुत ज़्यादा भी होंगी तो इनोसेंट में ही फॉल करेंगी। जितनी एजेंसीज हैं, डिप्लेक्स हीरो है ना, जो इनका स्माइल अगेन है। yes there you go, not just a smile again, with all the product language they have, the kind of services they are providing, and the mission statement of Musarrat Misbah, it's heroic. Nobody was talking about it, and only she did. With just a salon, who would think about it कि salon could turn into a bigger brand and then will have their own product line, and plus started a CSR initiative, although Diplex caregiver में भी आएगा, but I would place it at hero. Yes ma'am, वो पहली है, अभी तक और हाँ, किसी ने किया और किसी ने किया भी नहीं, and nobody is thinking about it. फिर इस तरह जितनी भी NGOs हैं वो भी केयर गिवर में आ जाएंगी, जो शहजाद रॉय की है, या फिर लाइक जितने भी पाकिस्तानी NGOs हैं. So now we have a pretty much clear, good understanding of what brand archetype is. Why? अब क्यों मैंने आपको पहले ब्रांड स्टोरी के बारे में बताया था? Because brand story and brand archetype links together. पहले हमें चाहिए था कि हम ब्रांड आर्केटाइप पढ़ते और फिर समझते क्यों स्टोरी होती है, लेकिन मैंने उल्टा किया. Why? Because I wanted you guys to have an understanding कि स्टोरी कितनी इंपॉर्टेंट है और स्टोरी निकलती कहाँ से, यहाँ से. This will define your brand design. जब मैंने अपने आप को मैप किया कि मैं एक्सप्लोरर हूँ, तो मैं सारी कम्युनिकेशन क्या करूँगा? एक्सप्लोरर पे मैप करूँगा ना. मैं एड्स बनाऊँगा, मैं ट्रैवल के बारे में बात करूँगा. जब मैंने कहा कि मैं हीरो हूँ, तो मैं क्या करूँगा सारी कम्युनिकेशन में? मैं हीरोइक बातें करूँगा. ऐसे ही है. जब मैं कहूँगा मैं केयर गिवर हूँ, तो मैं क्या किस चीज़ पे फोकस करूँगा? अपनी सर्विसेज पे फोकस करूँगा, अपने आइडियलिज्म पे फोकस करूँगा, लोग मुझे कैसे एस्पायर करते हैं मैं इस बात पे फोकस करूँगा. ऐसे ही जब मैंने कहा कि मैं लवर हूँ, तो मैं किस बात पे कोशिश करूँगा? मैं कोशिश करूँगा कि मैं फेथफुल रहूँ, इंटीमेट रहूँ, ठीक है, मैं लोगों के साथ लिंक रहूँ, विटैलिटी हो मेरे काम के अंदर. जब मैं कहूँगा कि मैं आउटलॉ और रिबेल हूँ, तो मैं क्या कोशिश करूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जितने भी ट्रेट्स हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स हों, जो किसी के पास ना हो. So then I will start thinking about all the communication which is going to land within my brand archetype. Brand archetypes are an important way to make a story for a brand. और उसी के उसका ये जो हमने कल पढ़ा था वो बेसिकली लेटर स्टेजेस थी, ये पहली स्टेजेस हैं. So are we good? आप बताएंगे, मैं क्यों बताऊं? आप बताएंगे मुझे. मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम यहाँ लर्न और अनलर्न करने आए हैं, सिर्फ लर्न नहीं करने आए. वैसे दराज का अपना तो कॉन्सेप्ट नहीं है, फूड पांडा का भी अपना कॉन्सेप्ट नहीं है. इट्स इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स जो वो लेके आए हुए हैं यहाँ पर. बट फूड पांडा आई वुड लाइकली टू मेक फॉलन मैजिशियन और मे बी क्या कहते हैं, इनोसेंट. बंगाली. तो फिर क्यों लिखवाया आपने दराज में आपसे? But it is locally so established and तो बस फिर उसकी ब्रांड आर्केटाइप तो वैसे होगी. अलीबाबा चाइनीज अब तो अलीबाबा ने बाय कर लिया. सो नाउ वी अंडरस्टैंड. चलें, ठीक है. Let's not dig into that. We understood.
the ideology of brand story. We understood what are brand archetypes. We understood why a strategy is important. We understood what are the mediums of integrated marketing communication and how integrated marketing communication can help you in building a proper channel communication for your brand. Yes. अब हाउ ब्रांड आर्केटाइप्स हेल्प्स ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि आर्केटाइप्स प्रोवाइड्स अ क्लियर पर्पस, दे डिफाइन योर वॉइस, आर्केटाइप्स कैन बेनिफिट यू थ्रू योर visual identity and visual strategy. Archetypes can differentiate you in the marketplace. That's what archetypes do. अच्छा, so क्योंकि आज की क्लास का पर्पस मैंने ज़्यादातर रखा था एक्सरसाइज पे, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि आप लोगों का बिल्कुल मूड नहीं है एक्सरसाइज कंडक्ट करने का. आई डोंट थिंक सो. इट्स जस्ट यू हु इज सेइंग रेडी फॉर इट. लुक एट अदर पीपल, दे आर जस्ट लाइक कि हम क्यों हैं क्लास में. ओके, खैर मैं खुद भी सीख रही हूँ, तो मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं जितनी बेहतर इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर हो सकती है वो करूँ. So, in order to design a communication, because I am a communication specialist, it is very important to understand what are the mediums which is important for your brand and what can help you in order to build a brand aura. और जब तक आप mediums नहीं समझेंगे, उनके ways नहीं समझेंगे, you won't be able to design them. So there are two types of marketing which is done globally. One is traditional and the other is unconventional. एक छोटी छोटी डेफिनेशन मैंने सादी सादी लिख ली हैं in order to help you understand what is traditional marketing. Traditional marketing refers to any form of marketing that takes place offline, online, such as offline, such as prints, advertisements, television commercials or radio ads or brochures, flyers, newspaper, that all print का सारा material that comes within the traditional marketing. Outdoors में इसी में आते हैं अब, they're not anymore बाहर. But what is unconventional marketing? So unconventional marketing is a way of making strategies aimed to take your core message and present it in a unique way that wins the attention of your target audience. So there are different global practices which is happening within Pakistan as well. There are a lot of brands who have started adopting the global practices. और वो global practices क्या हैं वो मैं आप लोगों से यहाँ पर लिख कर शेयर कर लेती हूँ. ठीक है. I could not get time to make that slide, so I thought I should be sharing it here so you guys can note them down. ज़्यादा नहीं है. I will share just 3 or 4 right now. Maybe it is helpful for your brand. अब ये वो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं जो कि अनकन्वेंशनल मार्केटिंग की हैं. Collaborations, that is one of the global practices which is happening across all the brands. चाहे आप बर्गर किंग को ले लें और मैकडॉनल्ड्स के साथ, या फिर आप be it any brand you talk about, they want to collaborate. सही है. So cross collaboration, vertical collaborations, collaboration with respect to product line, ventures, all those things are happening globally. So क्योंकि मार्केट शेयर जो है एक ब्रांड दूसरे ब्रांड के साथ शेयर करने को अब तैयार हो गया है. There is willingness of brands and people who are working for the brand that they wanted to share their market with each other. But having said that, having the same kind of brand ideology, brand archetypes, brand persona and brand market, only then you can share an audience ना. अदरवाइज आप नहीं कर सकते. मैं कोका कोला हूँ तो मैं पेप्सी के साथ शायद ऑडियंस शेयर कर सकता हूँ, बिकॉज बोथ आर फिजी ड्रिंक्स, बोथ हैव द सेम काइंड ऑफ. लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने शेजान के साथ करनी है जो कि जूस बेच रहा है, तो शायद वो एक वेंचर होगा, वो कोलैबोरेशन नहीं होगी. हाँ, यस, दैट्स फॉर टेस्ट ना, टेस्ट एनहांसमेंट. यस, वेरी गुड, वेरी वेल पुट. मैकडॉनल्ड्स ने बहुत सारी कोलैबोरेशंस की हैं, नाइकी करता रहा है बड़ी कोलैबोरेशंस, अडिडास और यीजीज की कोलैबोरेशन काफ़ी मशहूर है. सो देयर आर कपल ऑफ एग्जांपल्स. बाटा वाले हश पपीज वगैरह दूसरे ब्रांड भी. हाँ, हश पपीज के आपने मैकडॉनल्ड्स वाली कैंपिंग देखी होगी. दैट वाज माय आइडिया एंड आई वॉन एन अवार्ड फॉर इट एज वेल. So was it a collaboration
Yes. Bharat Jet and McDonald's. Yes, it was a collaboration. Yeah. मैम कौन सा आइडिया था आपका बता दो So Hush Puppies Pakistan was launching kids category in Pakistan for the very first time. It was globally launched. पाकिस्तान से बाहर kids category नहीं launch हुई थी और हम कर रहे थे. We were the first one between 160 countries. So we wanted to come up with an unconventional idea in order to tap the market. So I went to McDonald's global team, McDonald's Pakistan team. I asked them that we wanted to collaborate with you with your happy meal. पहले तो उन्होंने कहा पागल हैं कि जूते और खाने का कोई मिलाप ही नहीं है. Then I presented them the idea that we just want to target the emotions of the customer, and through their emotional targeting we will be able to achieve the audience. So collaboration बहुत simple थी that you go to McDonald's, buy a happy meal, you get a 500 rupees का coupon voucher which you can redeem at Hush Puppies, and we got 45% acquisition rate after that campaign within 3 months time. Yep. Okay. The हम लोग भी जो हम लोग काम कर रहे हैं जैसे हमारी टीम है जी, हमें जी। भी एक पेपर सोप बनाते हैं एक सही है। मैं स्किन केयर के साथ हूँ। हमारा सही एक है। था कि जैसे हम स्किन केयर को करते हैं उसके साथ एक सोप पेपर सोप है कहीं पे भी आप वॉश करें अपना फेस हाँ, फेस हाँ। को भी कर सकते हैं ठीक है। उसके साथ आप स्किन केयर यूज करते हैं कोलैबोरेशन हो गई तो बिल्कुल हो सकती है. Why not? That could be done. Same brand, same strategy. You can. You just have to think through. Then there are a lot of collaboration which is happening. Designer collaboration बड़ी हुई हैं. सफ़ायर ने खदीजा शाह को रखा और बड़े कपड़े निकाले और इस तरीके से. तो that is one of the collaboration in order to change the mindsets of the customer. So बहुत सारे personality traits ऐसे होते हैं जो कि जब आप collaborate करते हैं उनके साथ तो personalities के traits आपके brand के अंदर enhance हो जाते हैं. That is the reason they ventured with Khatija Shah and they wanted to have her use her name in order to get the audience. Same is done with J. Junaid Jamshed doesn't own the brand. He just has the shares. Yeah. Okay. The second bigger global practices right now which is happening is product integration digitally. Digital wallets, digital payments, NFTs, games, that is all product integrations digitally. How? जी sorry, Not able to understand. you are not able to understand. आपको NFTs का पता है सर? Okay, आपको मेटावर्स का कॉन्सेप्ट का पता है? तो NFTs is just like your digital wallet, जिस तरह बिटकॉइन है ना, that is same. That's something you own digitally but not physically. Those are NFTs. बिटकॉइन भी इसी तरीके से आपके शेयर्स होते हैं ऑनलाइन. I don't understand. या सो दैट इज ऑल डिजिटल वॉलेट्स. आपके जितने भी डिजिटल वॉलेट्स हैं या प्रोडक्ट इंटीग्रेशन विद इन योर डिजिटल वॉलेट्स इज वन ऑफ द ग्लोबल प्रैक्टिसेस. देन गो डिजिटल. ठीक है, different platforms, different platforms are launching, platforms are enhancing. जिस तरह हम बात करें फेसबुक की तो फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा कर दिया. They wanted to dive into more technological approach towards enhancing the brand, and they also wanted to have different space within the Facebook, within the metaverse. That is the reason they changed the name of their space and they started working towards it. The third best practices is as you can see, after COVID, lot of marketplaces has been evolving and people are too much venturing towards having a good marketplace जहाँ पर आप अपनी product place करें, because वहाँ पर traffic high होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं और आप वहाँ पर अपनी product को रख कर easily बेच सकते हैं. उसके अलावा store in store, shop and shop concept and 360 degree spaces का अब एक globally बहुत ज़्यादा trend रहा है जिसके अंदर people want to have. अब जिस तरीके से आप लोग जाहिर सी बात है सब फैमिली से हैं, so whenever like a family husband and wife going out
फॉर अ शॉपिंग, तो बीवी ज़्यादा टाइम लगाती है, मियाँ नहीं लगाता. तो लोग कहते हैं कि लाइक इफ यू गो टू खाड़ी, यू हैव अ कैफे देयर, सो ही कैन वेट एंड वाइल द वुमेन कैन शॉप. सिमिलरली अगर आप दुबई जाएं या फिर आप थाईलैंड जाएं या कहीं और भी जाएं, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा कैफेटेरियाज हर कॉर्नर पर हैं, सो दैट लाइक whoever wants to wait, they can wait there while other people can shop. So store within a store, brand within brand, ये वाले कॉन्सेप्ट स्टोर्स बहुत ज़्यादा चलने लगे हैं. लाइक एक बिगर फ्लैगशिप हो और उसी के अंदर सारी चीज़ें हों. सो ज़्यादातर ब्रांड्स इसी के अंदर वेंचर आउट कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रहे हैं. अच्छा. चाइना में भी मैम एक वो है जैसे रेस्टोरेंट में वेट करते हैं ना बाहर, उसमें बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स, नेल्स बनाने वाले, मसाज करने वाले, उनको साथ बिठाया है. अगर किसी गेस्ट के लिए जगह नहीं है तो वहाँ जाके उनको सही. बेहतरीन बेहतरीन. देयर यू आर. अच्छा. उसके बाद जो एक बहुत acclaimed कॉन्सेप्ट इस वक्त आ गया है, वो है VR, AR एंड गेम्स मेटावर्स का. आई होप यू गाइज मस्ट नो अबाउट कि लॉरियल पेरिस ने चाइना के अंदर एक अपना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट स्टोर खोला है, which is Instagrammably very beautiful, and it has 2 cafes, 3 floors, 4 assistants, and it also has 7 VR windows which can walk you through about your skin, which can help you understand your skin. और इसके लिए आपको किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर खड़े होकर बताने की. उसके अलावा लॉरियल, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लॉरियल ने ही एक AI बेस्ड एम्प्लॉय भी बनाया है who can assist you globally 24/7. और वो पाकिस्तानी भी बोलता है, उसने अस्सलाम वालेकुम भी बोला था. I had that video earlier. I have to dig into it शेयर करने के लिए, but yeah. Then games are keep on evolving. So games is not just like for play at the moment. Games are into invest in, games are to launch their product. Games is also one of the branding mediums which brands are using in order to showcase and display their brands. So जैसा मैंने कल आप लोगों को एग्जाम्पल बताई थी नाइकी रिएक्ट लाइन की, तो नाइकी रिएक्ट लाइन एक पूरा गेम है जिसके अंदर वर्चुअली सारे नाइकी के प्रोडक्ट्स हैं और सब मतलब लाइक एवरीथिंग इज़ अराउंड एथलीट्स, एवरीथिंग इज़ अबाउट रनिंग, एवरीथिंग इज़ अबाउट एक्सरसाइजिंग एंड ऑल दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट मेटावर्स का कॉन्सेप्ट भी डिजिटली ही है. दैट आप लोगों ने रेडी प्लेयर 1 देखी है? नहीं देखी? आई थिंक आप लोग फिल्में नहीं देखते. क्यों? डोंट गेट टाइम? अच्छी फिल्में देखें, दैट विल गिव यू सम नॉलेज. Ready Player One was launched in 2016 और it was based on a game which was built in metaverse. So that gives you an idea. और अभी 4 गेम्स ऐसे हैं जो मेटावर्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसमें one of the biggest game is Roblox, जो मेरे ख्याल से आप सबके बच्चे खेलते होंगे. जी, that is metaverse by the way. Different people can connect together and play game. जी, please. In Seattle, yes, the retail is also adopting fintech and has adopted VR, the whole store, also brand, not just L'Oreal. Yeah. I would like to understand that these practices, they are global practices, but in a region, if a region is not adopting and they are not still willing to adapt these practices, will they lag behind? So yeah, the market share would remain there. But would there be a disconnect, total disconnect with these brands after some time? Yeah, definitely. होगा ये कि आप जितने ब्रांड्स टेक्नोलॉजिकल एडवांस होते जाएंगे आप पीछे होते जाएंगे. हमने कल भी 2-3 ब्रांड्स के बारे में बात की कि जिन्होंने अडेप्ट नहीं किया, although they don't want to adapt it, but with the passage of time उनके शेयर्स डिक्लाइन हुए, they started dying down. So the price as well. Yes. Yes. But how long would these? Then you can't be, like a premium brand if you're not innovating, if you're not changing, if you're not learning, and if you're not adapting. Then it means that you will be in the market,
but not in the top of mind of the customers. How long do you predict, like, if I'm not adaptable to these changes, how long can I? I think पाकिस्तान में तो अभी 5-10 साल हैं इनको प्रॉपर तरीके से आने में. ये जो आखिरी वाला मैंने लिखा है ये तो बड़ा ही मुश्किल है. अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया हमने. पाकिस्तान की तो बात छोड़ देना, आप पाकिस्तान से बाहर निकल के देखें. No, but how long would I exist in the market? Survive कितना करना होगा? It all depends. It all depends on your consumer. अगर आपका कंज्यूमर इस बारे में अवेयर ही नहीं है तो शायद आप सारा ज़िंदगी सर्वाइव कर जाएं, और अगर आपका कंज्यूमर अवेयर हो गया है तो फिर शायद सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा. So why don't we take Pakistan as a model to apply everything that we are discussing abroad? Okay, Outfitters is one of the examples. Khadi is one of the examples. All the FMCGs present in Pakistan are the example. जिस तरह उन्होंने फिनटेक की बात की या फिर बैंक्स की बात करूँ मैं, सो अब ये डिजिटल वॉलेट्स ये सारी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं. ऑल्दो येस हमारे प्रोसेसेस थोड़े से स्लो हैं बिकॉज ऑफ आवर गवर्नमेंटल सोशल इकोनॉमिकल इशूज़, और वो सारी ज़िंदगी रहेंगे. जैसे कि शहजाद का वो गाना है लगा रहे हैं जिसमें वो कहता है कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है. जब मैं 9 साल का था पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा था. जब मैं 20 साल का हुआ तब भी पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है. आज हम यहाँ खड़े हैं अभी भी पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और हमेशा गुजरता रहेगा. बट दीज थिंग्स दे स्टार्ट लाइक दे कीप ऑन गोइंग, दे कीप ऑन ग्रोइंग. बट ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड their importance and we need to adapt them, because we all are entrepreneur and we should be adapting all the global practices before anyone else does it, because definitely आपको first mover advantage तो चाहिए होता है ना. और अगर आप first mover advantage नहीं लेंगे then आप sustain कर जाएंगे, market में रहेंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं रह पाएंगे जिस तरह बाकी और लोग रहते हैं. ठीक है, are we good? सो नो योर ऑडियंस हम हमेशा बात करते हैं. अब ये 2 चैनल अप्रोच हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग आजकल ब्रांड रन कर रहे हैं. इंस्टाग्राम बेस्ड ब्रांड्स भी बहुत सारे हैं, फेसबुक बेस्ड ब्रांड्स भी बहुत सारे हैं. तो नो योर ऑडियंस इज़ द फर्स्ट प्राइम फोकस. डिफाइन योर गोल्स एंड एंगेज योर कस्टमर्स. तो आप UGC कंटेंट भी कर सकते हैं, लकी ड्रॉस करा सकते हैं, लोगों को इंगेज कर सकते हैं, वाउचर्स दे सकते हैं, गिफ्ट कार्ड इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, एफिलिएट्स प्रोग्राम्स कर सकते हैं, पॉइंट्स दे सकते हैं, कैशबैक के बारे में बात कर सकते हैं. So these all can be done by engaging your customer. Create and share content rooted in product stories and brand purpose. सिर्फ एक तस्वीर दिखा देना जूते की या एक वॉच की या प्रोडक्ट की, it's not enough. It has to have a story. जो आपकी वाली बात थी उसका जवाब यहाँ है. You need to connect a story. A brand with just images and text is not telling anything. It has to have a connection, a storyline. ठीक हो गया? Be consistent in brand design and brand tone of voice. आपकी ब्रांड की जो भी डिज़ाइन गाइडलाइन है, पर मैंने ऐसे लिखा है. हम बार्कलेस के ऊपर काम करते थे in 2013-14 when I was into Flow & Bates. It's an advertising agency. So हमारे पास इतनी मोटी ब्रांड बुक आई थी और उसमें लिखा था कि A ऊपर से नीचे नहीं होगा, B इधर नहीं होगा, ये कलर होगा, like all the brand document which you have received about the brand. That is very important. So you all need to be very content about the brand voice, because यही आपकी brand story बनाता है. और अगर आपकी brand voice ख़राब होगी तो फिर आपकी audience distract हो जाएगी कि ये क्या बात करें. सोचें खाड़ी आज कह के जॉयलैंड नहीं रिलीज होनी चाहिए. What will people think about it? तुम्हारी भी तो कह रही है. What people are thinking about it? वो कह रहे बल्कि वो भी खुद ही गई थी कि कुछ डिटेक्ट करके और कुछ सेंसर करके उन्होंने जॉयलैंड रिलीज कर. चलें, ये बहुत ही नाजुक टॉपिक था जो मैंने छेड़ दिया ज़बरदस्ती. ओके, एनालाइज एंड ट्रैक योर एंगेजमेंट. बहुत ज़रूरी है. ROI के बगैर तो कोई काम ही नहीं होता सर. ऐसे ही पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा इन्वेस्टमेंट कर करके. ओके जनाब, डोंट लेट योर ब्रांड कम्युनिकेशन बिकम टू प्रमोशनल. ये जूता है, ये ले लो, ये डिस्काउंट है, ये ले लो. हाँ, बिकॉज हमें ब्रांड प्रमोशन आती नहीं है. कोक क्यों नहीं कहता कि एक कोक पे कोक फ्री? मैकडॉनल्ड्स क्यों नहीं कहता? पेप्सी किसी ज़माने में कहता, किसने कहा? तो पेप्सी भी नहीं कहता. अब नहीं कहता, किसी ज़माने में कहता था. किसने कहा था पेप्सी 50 कर दो? That was a stupid strategy. That was not global. This was just local Pakistani. ठीक है. So
हमारे जितनी भी ब्रांड्स हैं ना, दे आर टू प्रमोशनल बिकॉज वी आर, हमें कंज्यूमर की साइकी नहीं समझ में आती। हमने बेसिकली कंज्यूमर की साइकी समझने के बजाय कंज्यूमर की साइकी खराब कर दी है। हमने क्या किया है, हमने उनको सेल्स पे लगा दिया है, हमने उनको प्रमोशंस पे लगा दिया है। जब हम पढ़ते थे तो लोग मतलब हमारे जो टीचर थे वो कहते थे कि अगर अब आपने प्रमोशन या सेल का वर्ड कहा ना तो मैं क्लास से आपको बाहर कर दूंगा, बिकॉज दैट इज नेगेटिव मार्केटिंग. You don't do negative marketing. At times you should be doing negative marketing or promotions or offering things, but the right word is value addition. And value addition could be done through different purposes. After sales services भी बहुत बड़ी value addition है सर, जो पाकिस्तान में होती ही नहीं है. आज आपकी कोई चीज़ खराब हो जाए, जाएं ब्रांड के पास, वो कहते हैं, पहले तो मैनेजर्स मुंह छुपा लेते हैं, कहते हैं जैसे हमने उनका कुछ ले लिया या वो हमसे कुछ लेके भाग गए. फिर उसके बाद कहते हैं कि मैं अभी फ़ोन करता हूँ, इधर फ़ोन करता हूँ, और फिर कस्टमर बेचारा साइड में खड़े होकर, और जब कस्टमर गालियाँ देने पे आ जाता है तब वो कहते हैं अच्छा ले लें. एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप जाएं H&M के स्टोर पे ग्लोबली, एंड इफ़ यू गो टू Zara, if you go to Tom's, if you go any of the stores, or even like आप बाहर किसी खाने के स्टोर पे भी जाएं तो रिफ्रेशमेंट में आपको सैलड मिल जाएगी, कहीं आइसक्रीम मिल जाएगी, कहीं जूस मिल जाएगा. वेदर यहाँ पर दे चार्ज us for all those things. So like all these things we need to look for value additions. A small chunk of value addition can make a very long lasting impact on your brand. ठीक है? टेलीजॉब ने एक जब इजी पैसा लॉन्च किया था जी बॉस, वाज एन ऐड जिस पे वो लोग खड़े हैं, वाज इट अ ब्रांड स्टोरी और समथिंग एल्स? कौन सा ऐड? हम देख लेते हैं अभी वो ऐड और फिर समझेंगे कि उसमें ब्रांड स्टोरी थी या नहीं. ठीक है, ओके. एड्रेसिंग ग्लोबल क्राइसिस, बहुत ज़रूरी है कि आप बात करें क्या चल रहा है ग्लोबली, क्या चल रहा है. क्लाइमेट के बारे में बात करें, सस्टेनेबल होने के बारे में बात करें, ऑर्गेनिक के बारे में बात करें, उन चीज़ों के बारे में बात करें हु इज़ गोइंग टू reshape the brand phenomena and who is going to link you with the current news, because trend में भी तो रहना है ना. अगर मैं किसी चीज़ के बारे में स्टैंड नहीं ले रही, so it means that I do not connect with that purpose, and maybe that if I'm not connecting with that purpose, it means that is not helping in reforming my aura or the brand persona. और अगर मैं अपनी ब्रांड पर्सोना को इवॉल्व नहीं करूँगी तो शायद मैं कुछ चंक ऑफ ऑडियंस लूज़ कर जाऊँगी, क्योंकि शायद वो चंक ऑफ ऑडियंस उस चीज़ के साथ कनेक्ट कर रही होगी. जिसमें कोविड आया, सारी दुनिया ने कहा हाथ धोएं हाथ धोएं हाथ धोएं. सिर्फ एक सेफगार्ड था जिसका ऐड मुझे पसंद आया, बाकी सब लग रहा था डेलिबरेटली बोल रहे हैं हाथ धोएं. कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, कुछ चीज़ें मैनमेड थी, उनको खुद ही नहीं पता था कि वो WHO जितनी भी चीज़ें भेज रहा था, दे डोंट इवन नो. डू यू नो कि आप मास्क पहनने से 30% ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ब्रेन रोक देते हैं. एंड इफ़ यू सैनिटाइज योर हैंड, यू आर एक्चुअली आप अपनी डेड स्किन जो है वो ख़त्म कर रहे हैं. और अगर आपकी डेड स्किन ख़त्म हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत ईजी हो जाएगा और आप स्किन डिजीज़ का शिकार हो सकते हैं. सो ये आप क्यों कर रहे हैं? प्लीज़. जी जी, हाँ कहते नहीं. इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा है ना उनका. हाँ, कराची वाले ने तो बहुत बिल्कुल ही मास्क नहीं पहना. तो मैं कराची वाली हूँ. The way you discuss about WHO, हाँ. talk about marketing, basically people are talking about climate change and Yes, sustainable goals, right? but that is important. क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करना चाहिए बिकॉज दैट इज एविडेंट. लाइक ग्लोबल क्राइसिस, शायद ये पैंडेमिक, कोई स्टैम्पीड हो जाए, ये सारी चीज़ें जो टोक्यो में या हैलोवीन की वजह से, ये सारी दीज आर सेकेंडरी इशूज. सो समटाइम्स व्हेन वी टॉक अबाउट पैंडेमिक्स और एनीथिंग व्हिच is very smaller in quantum but happening very rapidly, is also about that we want to deviate from attention from the actual topic. The actual topic is global crisis, global climate, sustainability. जो वेस्ट में लोग शायद बात कर रहे हैं सिर्फ बात करने की हद तक, कर कुछ भी नहीं रहे. Basically, their industry was putting money behind this thing, the fossil fuel industry, and then there's the renewable market energy. Yes.
So every way it is money involved in this industry. Yes, yes, So I agree. true purpose and perception, business model, they are different. कल भी मैंने आपसे एक बात की थी कि ब्रांड का पर्पस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एक बहुत अलग चीज़ है। ब्रांड का ऑर्गेनाइजेशनल गोल से उस डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, क्योंकि ब्रांड आप बनाते हैं इन ऑर्डर टू बी परसीव्ड, ऑर्गेनाइजेशन आप बनाते हैं पैसे कमाने के लिए। सो पैसे कमाना और ब्रांड बनाना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये बस बताना चाह रही हूँ मैं आपको। क्या करना चाहिए? पैसे होने चाहिए, ब्रांड बनाना चाहिए सर, ब्रांड लास्ट लॉन्ग। पैसे तो मैंने आपको कल इतना लेक्चर दिया कि पैसे आप अभी कपड़े लेके खड़े हो जाएं, बाहर नहीं बिके तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। इन कपड़े क्या, आप कुछ भी लेके बाहर खड़े हो जाएं, ये नहीं बिके ऑफ द प्राइस पॉइंट। बट ये मैं यहाँ की मार्केट की बात कर रही हूँ। बट इफ यू गो अब्रॉड, अब वहाँ पर चीज़ें बिक तो जाएंगी, बट दे आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट विद यू until unless you have a story. So there is an Instagrammer globally, I think Evan, if I'm not wrong. So what he does is that उसका YouTube channel है and he goes on the street of Volkswagen और इधर उधर जाकर he start distributing $500 to people. All the people who are on the road, they don't have houses, they don't have anything. And he just goes there, and somebody is sitting on a cart, he asks कि तुमने क्या खाया है, और वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं खाया। तो कहता है कहते हैं मैंने भी कुछ नहीं खाया, डू यू हैव $1 to give it to me? And that person who doesn't have anything, he was willing to give him $1, and once that person gives him $1, he returned back $500 to him. Oh, yes. That's an act of kindness. That is another way of brand building. And he owns, मेरे ख्याल से हाँ, घड़ी का ब्रांड वो ओन करता है। सॉरी। ओके, brand purpose, tailor your message, increase digital spend because of algorithms, and lean to brand purpose. किसी भी वक्त पे आपने brand purpose नहीं छोड़ना है, because brand die down हो जाएगा the moment you leave the purpose of the brand. ठीक है? जब हमने कोलैबोरेशंस की बात की तो ग्लोबली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसमें बैंक कोलैबोरेशंस बहुत काम करती हैं। पॉइंट्स हो गए, रिडेम्पशंस हो गई, बिकॉज बैंक्स का लॉयल्टी प्रोग्राम इज़ द बेस्ट लॉयल्टी प्रोग्राम देन एनीबडी एल्स कुड हैव, बिकॉज यू ऑल आर एंटरप्रेन्योर्स और आप सबके कोई ना कोई ब्रांड्स हैं। सो आई एम श्योर उसकी कोई ना कोई लॉजिस्टिक्स, कोई ना कोई बैंक ट्रांजेक्शन्स होंगी। सो इफ़ यू हैव एनी बैंक ऑन बोर्ड, वैसे तो HBL हैज़ दिस एहतिसालात के साथ उनकी कोलैबोरेशन है, दे आर द ओनली वन हु ओन्स द लाइसेंस। अपार्ट फ्रॉम देम स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बट स्टैंडर्ड चार्टर्ड की स्टैंडिंग इज़ नॉट दैट गुड, बट आई वुड रिकमेंड HBL, मिज़ान और अल्फला टू हैव कोलैबोरेशन विद, बिकॉज इनकी सबसे अच्छी ऑफरिंग्स है। ठीक हो गया? मार्केट प्लेसेस, हमने इससे पहले भी बेस्ट प्रैक्टिसेस में, ग्लोबल प्रैक्टिसेस में बात की थी मार्केट प्लेसेस की। सो मार्केट प्लेसेस से आपके 52% रेवेन्यूज जनरेट होते हैं, बिकॉज इट हैज़ द बिगेस्ट टारगेट ऑडियंस। ठीक हो गया? ओके, लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज। हम ग्रुप्स बना लें। हाउ मेनी पीपल वी हैव? अभी तक आप लोगों ने कुछ समझना है related to what we have discussed? Anything which I have missed and you guys think that it is an important topic to discuss on, please मुझे बताइए। So अभी हम डिस्कस करें before we move on to exercise. ये मार्केट प्लेस आप एक दफा थोड़ा सा। Jomo is a marketplace. Daraz is a marketplace. OLX is a marketplace. Lam is marketplace. Amazon is a marketplace. ठीक है? Anything? कोई चीज़ जो आप लोग मुझसे स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाहते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू दी एक्सरसाइजिंग एक्टिविटी, प्लीज़ मुझे बताइए। एंड आई ऑल्सो पर्सनली वॉन्टेड टू आस्क कि आई होप कि आप लोगों की जर्नी 2 दिन की मेरे साथ बहुत अच्छी रही होगी। आई हैव ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम यू गाइज। आई बिलीव यू गाइज मस्ट हैव लर्न। तो आप मुझसे काउंटर सवाल करें, ठीक है? हम अभी 8:30 हो रहे हैं, वी हैव 10 मिनट्स, ठीक है? जब हम एक्सरसाइज जा रहे हैं उससे पहले 10 मिनट हैं। हमने कल से आज तक 4 टॉपिक्स के बारे में बात किया है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक ब्रिज है, बेसिकली एक ब्रिज है सारे मीडियम्स का।
जिसकी मैं स्पेशलिस्ट हूँ, और मैंने वही आपको कल से अब तक पढ़ाया है। इसमें मैंने आपको सिर्फ 4 फैक्टर्स के बारे में पढ़ाया है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ सर। हाँ, मैं रिपीट कर देती हूँ, इट्स कम्प्लीटली फाइन, इसमें कोई हार्म नहीं है, ठीक है। सो IMC जो ये टूल है, ठीक है, ये कोई मीडियम नहीं है, इट्स अ टूल, ठीक है। ये मार्केटिंग यूज करती है अपनी कम्युनिकेशन को, पर्सोना, ठीक है। अब पर्सोनिफिकेशन कैसे बनेगी, आज हमने पढ़ा है। ब्रांड आर्केटाइप से, ठीक है। जब मुझे पता चल गया कि मैं ये हूं, ठीक है, मैं ये हूं, तो फिर मैं इसकी स्ट्रैटेजी बना सकती हूँ, ठीक है। स्ट्रैटेजी का मैंने आपको बताया था कि स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। नहीं रोशन, नहीं, आप भूल गई तो फिर आप आगे कैसे करेंगे। आपने मिशन और विजन बताना है कि मैं क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने अपनी गोल्स बताने कि मैं किस लिए कर रहा हूँ। हमने ये डिस्कस किया था ना कि ये जो है ना W, इस जैसे सारे W का जवाब पहले हमने लिख लेना है। मैं जब कोई भी काम करती हूँ ना, मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं सब लिख लेती हूँ, इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो आप पहले सब लिख लें कि आप ये क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, और कब करेंगे, और किसके साथ करेंगे, और कैसे करेंगे, और कहाँ करेंगे। तो ये जब आप कर लेंगे ना, ये W पूरा आंसर कर लेंगे, तो वो W आपको ये बताएगा, ठीक है। अब कुछ एनालिसिस होते हैं, उनके कुछ टूल्स होते हैं, जिस तरह ये है SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ठीक है। स्ट्रेंथ को क्या कहेंगे, ताकत, और कमजोरी, मौका, बैरूनी खतरात। वेरी वेल सेड, बहुत शुक्रिया, ठीक है। हम SWOT करेंगे, हम परसेप्चुअल मैप्स करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं परसेप्चुअल मैपिंग, ठीक है। इसको कहते हैं सर, इन अदर वर्ड्स इसको कहते हैं लैंडस्केप डिज़ाइन, ठीक है। लैंडस्केप एनालिसिस बेसिकली ना, लैंडस्केप एनालिसिस आपको बताएगा कि जो मैं करने जा रहा हूँ ना, क्या इस जैसा और भी कोई ये कर रहा है, और अगर कर रहा है तो कैसे कर रहा है, और क्या कर रहा है, और कहाँ कर रहा है, और मैं उससे बेहतर कैसे कर सकता हूँ, ठीक हो क्या। तो फिर उस हिसाब से मैं अपनी प्रोडक्ट को और बेहतर कर लूँगा, ठीक है। फिर इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पेस्टल्स, ये मैंने कल दिया था, और पोर्टल्स। अगर आप इसको इंटरनेट पे सर्च करें, ये 2 टूल्स हैं, बहुत सिंपल से हैं। पेस्टल्स जो है वो बेसिकली आपको इकोनॉमिकल सिचुएशन, टेक्नोलॉजिकल, आपको क्या एडवांसमेंट चाहिए होगी, उन सारी चीज़ों के अंदर हेल्प करेगा। और जो पोर्टल्स है वो वही लैंड मार्किंग करेगा आपकी पूरी एनालिसिस की, लाइक कंपैटिटिव लैंडस्केप की। तो आपको पूरा जियोग्राफिकली पता चल जाएगा। पर से मैं अगर लॉन बेचना चाहती हूँ तो मेरे पास X बिलियन ऑडियंस है लॉन की, जो कि इस जगह रहती है और इस ब्रांड से खरीदती है, इसका मार्केट शेयर इतना है, और अगर मैं इस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करूंगी तो मैं इतना कमा सकूंगी। अब वो मैं कमाऊंगी कैसे, ये जब मैं डिसाइड कर लूंगी तो फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी अपनी प्लानिंग, ठीक है। मैं अपनी प्लानिंग करूंगी ब्रांड की, ठीक है। जब मैं अपनी ब्रांड की प्लानिंग कर लूंगी कि मैंने ब्रांड का पर्पस क्या रखना है, कंसिडरिंग मेरी आर्केटाइप, कि मेरी ये आर्केटाइप है तो मेरा ये ब्रांड का पर्पस होगा, तो मैं उसकी ब्रांडिंग अलाइन करूंगी, ठीक है ना, ब्रांड एंड डिज़ाइन करूंगी, सही। वो ब्रांड एंड डिज़ाइन कहाँ जाना चाहिए वो आप आखिर में डिसाइड करेंगे। ये प्रोसेस है सर, या मुझसे कल पूछ लेते। एक पिक्चर लेके ग्रुप में सेंड उधर से, ठीक हो गया। हाँ जी बिल्कुल करें सर, फैसल बताएं।
ब्रांड लॉन्च करना है या उसकी ब्रांडिंग करनी है या एडवर्टाइजमेंट बनानी है, कैंपेन बनानी है, मैंने 4 कंट्रीज फ्रेंच, जर्मन, डच और 3-4 चाइनीज, ठीक है, क्या मैं एक ही ब्रांड को क्या उसका बना के लैंग्वेज चेंज करके 4 रीजन में लॉन्च करना बेहतर है या मैं सबके लिए अलग ही फिर उस लिहाज से बनाऊंगा? लैंग्वेज तो ट्रांसलेट हो जाएगी, लैंग्वेज तो ट्रांसलेट हो जाएगी। वैसे डॉव इज एन इंटरनेशनल ब्रांड, सॉरी डच में डॉव डच की लैंग्वेज यूज करता होगा, पर्पस तो एक ही है ना। अगर डॉव एक कैंपेन लॉन्च कर रहा है, लेट्स से नाइकी कैंपेन लॉन्च कर रहा है या रीबॉक कर रहा है, बी मोर ह्यूमन, वो उस रीजन के हिसाब से उनके पर्पसेस हैं, ठीक है। एक ब्रांड पर्पस सेम है, ठीक है, मेन कोर सेम है कि सक्सेस है। अब उसको मैंने कैसे, अब वहां पर डेफिनेटली रीजन में डिफरेंट लोग बैठे होंगे, अब वो उस मार्केट के हिसाब से वो कैंपेन्स डिजाइन कर रहे होंगे। सो जब मैं ये सब कर लूंगी, ये तो मेरा सेम रहेगा 5 सालों तक, ये नहीं मेरा आगे पीछे होता। एक दफा डिफाइन कर लिया मैंने, तो जब मैं मार्केट में चला गया और मैंने कर लिया, तो यहाँ तक मेरी सारी चीजें नहीं बदलती। कुछ अरसे तक तो आप सेम रहेंगे ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आज मैं कहूँ मैं सक्सेसफुल हूँ, कल कहूँ नहीं यार मैंने नहीं सक्सेसफुल होना, ये तो इट कांट बी डन, राइट। तो यहाँ चेंजेस आती हैं। ये जो 2 एरियाज है ना, प्लानिंग, डिजाइन और ब्रांडिंग एंड IMC प्लेटफॉर्म्स, ये आप अपने हिसाब से, एग्जीक्यूशन ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, अपने ब्रांड के हिसाब से डिसाइड करेंगे, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से डिसाइड करेंगे। ठीक हो गया। ये जो है ब्रांड पर्सोना, ब्रांड आर्केटाइप, ये आज का टॉपिक है। और फिर जो मैंने आपको बाकी की चीज़ें बताई हैं, ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बताई हैं, क्योंकि आई गेट टू नो कि आप सारे ज़्यादातर डिजिटल स्पेस में एंटरप्रेन्योर्स हैं और आपके जितने भी ब्रांड्स हैं वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और इधर उधर हैं। तो मैंने फिर वो डिजिटल बेस्ट प्रैक्टिसेस आप लोगों के साथ शेयर की, जो शायद आप लोगों के ब्रांड को बिल्ड करने में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मैम आपका टॉपिक वायरल मार्केटिंग, ये आई डोंट नो, बताएं जी। वायरल मार्केटिंग तो कहीं से भी नहीं था। मैं वही कह रही हूँ। हाँ, ये आई एम नॉट अ वायरल पर्सन, नाइदर आई कैन डू वायरल मार्केटिंग, एंड देयर इज नो एज सच थिंग एज वायरल मार्केटिंग, बाय द वे देयर इज नो एज सच थिंग एज वायरल। वायरलिटी मीन्स नेगेटिविटी। वायरल चीज कब होती है? वायरस हो गया ना जब वो नेगेटिव होता है, ठीक है। whatever we should do it in a positive manner. So कोई भी एक एड आप लोग सर्च करें, you have 5 minutes, एंड उस एड का ब्रांड पर्पस मुझे बताएं कि ब्रांड ने ये कम्युनिकेशन क्यों बनाई और ये कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ थी और इसका पर्पस क्या था और ये ब्रांड से कैसे लिंक है। प्लीज हम भले लाइट्स ऑफ कर दें, जस्ट गिव देम 5 minutes टू सर्च अबाउट इट। The strangers are zombies. देखो ये हम तीनों बनना चाह रहे थे। So horrible. Pretty cool. If you ever hear that thunder, put your eye to the sky, boy, and Cute. wonder. Maybe there's a kingdom above the weather. Oh, and whether you're gonna get on me is the day. Carry on, love, like some songbird, beautiful stranger. Carry on, love, like some songbird, beautiful stranger. Very beautifully put. So the theme was, song was Beautiful Strangers. बहुत पुरानी नहीं, स्टिल ये होता है कई मुल्कों में कि लोग कहते हैं जी किसी अजनबी को घर में मत आने दो, ही स्ट्रेंजर सो वी शुड नॉट अलाउ हिम टू इन आवर हाउस। तो इन्होंने एक कैंपेन ये लॉन्च की थी, स्ट्रेंजर्स आर नॉट रियली स्ट्रेंजर्स। तो इसमें जो ऐड में भी दिखाया यही गया है कि कुछ स्ट्रेंज किस्म के लोग घर में आते हैं, वो चाय भी बना रहे हैं, वो सो रहे हैं, वो टीवी देख रहे हैं, वो बाहर खेल भी रहे हैं, सैर कर रहे हैं, और अगले दिन जाते हुए थैंक यू का नोट रख रहे हैं, और एक चीज़ फ्रेम उल्टा था तो उसको सीधा कर रहे हैं।
और जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं दे शोन एज ए नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, क्योंकि वो उस घर वालों के लिए तो स्ट्रेंजर्स थे, तो वो एक स्ट्रेंज लुक में भी थे। तो इसमें बताया ये गया है कि स्ट्रेंजर्स आर नॉट रियली स्ट्रेंजर्स, उनको आने दें, ठहराएं उनको, दे विल टेक केयर ऑफ योर हाउस, और जाते हुए वो आपको थैंक यू भी करके जाएंगे और फाइनेंशियली पैसे भी दे के जाएंगे। So, आपको पता है एयरबीएनबी का क्या कॉन्सेप्ट है? मैं भी इतनी देर में वो नहीं पढ़ सके, हम दिस राइट देखा मुझे। Okay. So Airbnb and Agoda, Airbnb especially, Airbnb का कॉन्सेप्ट ये है कि Airbnb आपकी स्पेसेस को रेंट आउट करता है। डेफिनेटली भी करता है। ठीक है, और वो Airbnb पे होटल्स रेंट आउट नहीं होते। इट्स लाइक अ सर्विस प्रोवाइडर। यस, लाइक इससे लाइक अब जिस तरह मेरा घर है और अगर उसमें एक कमरा खाली है तो मैं उसको Airbnb पे डाल सकती हूँ। डेफिनेटली यही तो कांसेप्ट है। बेसिकली उन्होंने अपना ब्रांड पर्पस डिफाइन किया यूजिंग द स्ट्रेंजर थिंग्स दैट स्ट्रेंजर्स आर नॉट स्ट्रेंजर्स। Airbnb में यू रेंट आउट शेयर्ड स्पेसेस, और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए क्रिएटिव कैंपेन बनाई इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ फंक्शनल कैंपेन कि आप ये जगह आपको मिलेगी। उन्होंने दिखाया कि जब आप किसी मतलब, और दिस ऑल्सो शोज द वैल्यूज ऑफ द ब्रांड that when you go on a shared space, you should clean it up while leaving it. Yes. So you don't make a mess out of it. Yeah, in one advertisement. So now I think मेरी इस क्लास से आप लोग एटलीस्ट एड्स को डिफरेंट तरीके से देखेंगे अब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। There are 3 kinds of ads. ठीक है, ये भी आप लोग थोड़ा समझ लें। So one is your tactical ads. फंक्शनल बेस्ड, जिसमें आप जिस तरह इन्होंने आगे आते ही वो एक कॉल आउट आया कि ये ग्रिप है और ये टायर है और इसकी ये फंक्शनैलिटी है XYZ, एंड वन इज योर थीमेटिकल एड्स, जो उससे पहले पूरा चल रहा था गाना, वो थीम थी। उसमें प्रोडक्ट बहुत सटली पुट होता है। आप कैडबरी के सारे एड्स देख लें, एंड तक आपको नहीं पता चलेगा कि कैडबरी है। That is one of the message, celebration. That is one of the brand purpose. खुशियाँ, क्योंकि मीठे के साथ खुशियाँ celebration link होती है, तो Cadbury is everywhere wherever is खुशियाँ is there. But again, Coca-Cola has nothing to do with happiness. I still condemn that. But yeah, so now you understand कि communication is very important, और communication drive करना like properly और सही तरीके से is also very important. We have learned about why mediums are important, what is brand purpose, what is brand persona, what are brand archetypes, and how you can tell a good story about your brand. पहले आपके दिमाग में स्टोरी होगी तभी तो आप कॉपीराइटर से लिखवाएंगे। जब आपके खुद के दिमाग में स्टोरी नहीं होगी, आप कॉपीराइटर से क्या लिखवाएंगे? So you need to उसकी स्टोरी होगी, आपकी नहीं। So पहले आप खुद समझें कि आपका ब्रांड का क्या पर्पस है, उसकी क्या स्टैंडिंग है, और देन उसके अराउंड स्टोरीज बनाएं। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को भी बहुत आया होगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर मुलाकात होगी दोबारा। दुआओं में याद रखिएगा, एंड थैंक यू।